ओम ह्रीं नमो अरिहन्ताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो अभयाय। ओम नमो अज्जाय। ओम ह्रीं नमो वे संवसाहो। ऐसो पंचनमोकारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणंच सौवेशे परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये विशेष सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। आसन बदलते हुए अगर हो सके तो बंदनासन में आए। बंदनासन में आते हुए त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं। वंदे गुरु परम। वंदे सच्चं। सबको जय। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? जी आ रही है। तभी एक बार हाथ ऊपर करें, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। बहुत सुबह आए हुए हैं सबको। यस, रिलैक्स रिलैक्स। हाथ को तनाव दो और खींचो ऊपर। थोड़ा सा फ्रेशनेस आ जाएगा। जितना खींच सके खींचे, थोड़ा तक खींच लीजिए और हम तैयार हो जाते हैं कार्यक्रम के लिए। बहुत सुंदर शुरुआत, नौकार महामंत्र और उसके बाद अपने की त्रिपदी वंदना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली वंदना की हमने अरहम, यानी जिन्होंने सारे गुण पाए हैं वो अरहम को वंदना की हमने। उसके बाद हर व्यक्ति अपने गुरु को चाहता है, इसलिए दूसरी वंदना अपने गुरु की हो गई। और तीसरी वंदना सत्य ही भगवान है, इसीलिए सच्च की वंदना, सच्चम। तो हमने तीन वंदना, भगवान महावीर की वंदना। तो आइए सभी एक बार भाव से भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदना करें। और मैं माइक हैंड ऑन करती हूँ बिपिन भाई के पास, कि जिन्होंने अथक प्रयत्न करके ये सारा कार्यक्रम संचालित किया है। तो कार्यक्रम का शुभारंभ वेलकम करने के लिए माइक हैंड ओवर टू बिपिन भाई। Jai Jinendra, thank you Alka Ben and thank you Anand ji for taking some time off for our Jain Society of Detroit senior and everybody, all members for this yoga and Preksha meditation, Preksha Dhyan session today. For everybody in the people who don't know, Mrs. Alka Ben Sankla is from India, but she came to United States this year for as a Jaina scholar for presenting the yoga and Preksha meditation session in Jaina convention in July, in last month in Orlando, Tampa, Florida convention. And Alka Ben has done BA and LLB from Pune University in 1974 and 1983. And Alka Ben has also lot of many skills in yoga. There is an exams called Yoga Pravesh, Yoga Parichaya, Yoga Praveen, and Yoga Pandit in India. So she has completed all those special exams in yoga, and also she yoga. Alka Ben is doing MA with Science of Living and Preksha Meditation, Preksha Dhyan, and she is from MA Jainology from JVLB, Jain Vishwa Bharati Institute, Ladnun in 2008.
Alkaben is doing many yoga sessions online and in person in India and also in America for many centers. And with Alkaben, we have also Anand Malji Sethia. And he is from Maharashtra, India, right now, from Nagpur. And almost 37 years प्रेक्षा ध्यान कराते हैं और last 10 years plus से वो Anand Malji is doing all these services without any charges for all the people. So and in last year in 2023 महाराष्ट्र में महाराष्ट्र रत्न सम्मान का अवार्ड उनको मिला है और इंटरनेशनल योगा गुरु ब्रह्मा से ये साल में उनको अवार्ड किया गया है. तो मैं उन दोनों को आनंद मलजी वहां से इंडिया से ये जूम का पूरा सेशन कंडक्ट करेंगे और जिसको जरूरत है उनके लिए ऑडियो ऑन करेंगे. बाकी सब के लिए ऑडियो प्लीज कीप इट म्यूट. यू कैन कीप द वीडियो ऑन एवरीबडी. And please enjoy this yoga and Preksha meditation. I will give back to Alkaben and Anand Malji. And one more thing, जैना कन्वेंशन में हमारे मनीष भाई मेहता जो जैना डायरेक्टर है जैन सोसाइटी ऑफ ग्रेटर डिट्रॉइट के, he also witnessed personally this session in convention, and I will like to have Manish bhai say a few words for Alkaben. So please turn his mic on. Okay, Jai Jinendra, everybody, pranam. Thank you all for taking time this week morning to join. Wish we could do it on the weekend, but things get busy, so we thought let's do something for senior citizens of our Jain Society of Greater Detroit for this weekend. It's such a pleasure to be here with you. Unfortunately, I am myself trapped in my home study office on my chair because my two sons and daughters-in-law are here and everybody is working online in different rooms remotely. So I can't be out in the front doing yoga and turning on the TV. But anyway, it's my pleasure to be here. I'm really impressed by what Alkaji taught us at the Jaina convention, both laughter yoga, some preksha meditation, and other stretching exercises that really uplifted the moods and the spirits of almost 2,000 of the Jaina convention attendees on the last morning before we all parted our ways from the convention. And it was so impressive and so, internally it uplifts your spirit. So for that reason, I felt I should recommend Alkaben, who is available currently in California, visiting her family. She is supported by her husband, Deepchandji Sankla as well. And of course, we have just met Anand Malji Sethia from Nagpur. So we are grateful to him for the service he is doing to help promote Preksha and yoga to the world, literally. And I had to give a lot of credit to Seema Ben and Avibhai Shah of our own society, because about 8 or 10 years ago, when we were organizing the Detroit Jaina convention, they introduced me to Alkaben at that time. And since then, we've been in touch with Alkaben, and I'm so glad she was able to then make it to the Jaina convention last month. So, and of course, thank you, Jain Society of Greater Detroit Seniors Group, led by Bipin Bhai Soiniben Shah, for hearing my appeal to get this program today. So I'm very grateful to you for organizing. And let's go on with the show, please. Thank you. Jai Jinendra. बहुत बहुत धन्यवाद. चलिए आइए कार्यक्रम की ओर जाते हैं. जैसे मनीष भाई ने कहा, सबके नाम लिए. हर प्रोग्राम होने के पीछे परमेश्वर की, भगवान की इच्छा होती है और वो सारा प्रोग्राम सेट होता है. आज के विषय की ओर चलते हैं. सबका एक ही मन में भाव रहता है. क्या रहता है? Everyone want a healthy life, happy life. और ये हेल्दी लाइफ और हैप्पी लाइफ कैसे हो सकती है, इसी पर हमें चर्चा करनी है. सबसे पहले कहा है कि हेल्दी बॉडी होनी चाहिए. इसीलिए कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया. पर बॉडी अच्छी हो और अगर आपका माइंड अच्छा नहीं हो तो भी काम नहीं होगा. नहीं तो
बॉडी बिल्डर आएंगे, सबको मार के सारी सत्ता हाथ में लेंगे तो क्या होगा। इसीलिए जितना हेल्दी बॉडी होनी चाहिए उतना हेल्दी माइंड होना चाहिए, और उसी से अपनी लाइफ हैप्पी बन सकती है। तो आइए हैप्पी हेल्दी लाइफ कैसी बने इसके बारे में, और वो भी अपने जैनिज्म के थ्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे बड़ी बात है, आज हमने शुरुआत की नौकार मंत्र से। तो हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ की कहीं ना कहीं तो स्टार्ट तो करनी पड़ती है, शुरुआत तो होती ही है। हर एक का स्टार्ट होता है, तो कम से कम मिनिमम हम लोग नौकार मंत्र को जाने, रोज नौकार मंत्र करें। रोज कितना करना चाहिए नौकार मंत्र? अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो मुझे पता है कि बहुत सारे वेरिएशंस आएंगे। कोई बोलेगा 108 बार करना चाहिए, माला फिरनी चाहिए, कोई बोला 5 बार तो करना ही चाहिए, कोई बोलेगा 3 बार तो करना ही चाहिए। पर मैं भाग्यवान हूं कि मेरे ननन जी साध्वी जी है, और बहुत प्रबुद्ध साध्वी जी है, कनक श्री जी अभी चातुर्मास जयपुर में है। और उन्होंने लिखी हुई एक गीतिका मुझे बहुत अच्छी लगती है, जिसकी 2-4 लाइन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कि नौकार मंत्र पूरा गीत सुनाऊंगी तो पूरी क्लास हो जाएगी, तो इसलिए केवल स्टार्ट बताती हूँ। अपने हर सांस में नौकार मंत्र रहना चाहिए, हर सांस में, उठते बैठते काम करते टाइम भी। आप बोलेंगे काम करते टाइम कैसे, वो भी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले सांस सांस में रहे निनादित, सांस सांस में रहे निनादित महामंत्र नवकार, ले ले सहारा हो जाए बेड़ा पार, ले ले सहारा हो जाए बेड़ा पार। शॉर्ट में जानना है महामंत्र क्या है, तो जानिए महामंत्र। तो महामंत्र नौकार का एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, तो हमें एक एक वर्ड को समझना चाहिए। पर हम कभी कभी देखते हैं, लोग बोलते हैं नमो 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 नमो, हो गया मैंने माला फिर, मैंने तो 5 माला फिर आज। परंतु वो नहीं होता है। नौकार मंत्र को एक एक शब्द को समझना पड़ता है, एक एक अक्षर को समझना पड़ता है। और प्रेक्षा मेडिटेशन में हम विशेष करके नौकार मंत्र का ध्यान भी करवाते हैं, और ये ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम नौकार मंत्र के रंग बताते हैं, जैसे नमो अरहंतानम मस्तिष्क का स्थान है, ज्ञान केंद्र, हाँ श्वेत रंग का ध्यान करते हैं। दर्शन केंद्र हमारे भ्रुकुटी के बीच में होता है, उसमें रेड कलर होता है, अरुण रंग बोलते हैं, अरुण रंग उगता सूर्य का रंग। और नमो सिद्धानम यहाँ होता है। विशुद्धि केंद्र पर यहाँ जब हम आते हैं तब येलो रंग होता है, और नमो आयरियानम। हार्ट पर आते हैं तो नमो उवच्छायाणम और ग्रीन कलर होता है। और नीचे शक्ति केंद्र मूलाधार चक्र पर आएंगे तो कौन सा केंद्र होगा, उस टाइम नीला केंद्र, नीला रंग होगा, और ये शक्ति केंद्र। तो इस प्रकार अगर हम मंत्र को समझे, रंग को समझे, तो हमारा ऊर्जा, सबसे मेन बात है कि हमारा हैप्पी एंड हेल्दी रहने के लिए हमारी जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा का ऊर्ध्वागमन करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है ऊर्जा ऊपर जाना बहुत जरूरी है। और ये कैसे जाती है, रीढ़ के हड्डी से, मतलब नीचे शक्ति केंद्र मूलाधार चक्र से धीरे 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 ऊपर जाती है, और ऊपर जाके फिर हम बहुत आगे अच्छे बन सकते हैं। तो चलिए पहला लेसन स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग कुर्सी पे बैठे हैं, कुछ लोग नीचे बैठे हैं। तो नंबर 1 आज का लेसन, सबसे पहले रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है। जो कुर्सी पे बैठे उनके लिए मेरा नम्र निवेदन है, हम कुर्सी पे बैठते हैं ना तो इस तरह बैठते, देखिए हम कुर्सी पे आगे बैठते हैं और इधर पीछे गैप रहता है, हमारे पीछे गैप रहता है, तो हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रहते हुए हमारी थोड़ी झुकी हुई हड्डी रह जाती है। तो सबसे पहले क्या करना है, पीछे सरकना है, पीछे सरकना है, एकदम पीछे। जो भी चेयर पे बैठे एकदम सीट, हमारी जो सीट है वो लास्ट चेयर के भाग को टच करे, और फिर हम स्ट्रेट हो जाए, और स्ट्रेट होते होते एकदम स्ट्रेट। सो रीढ़ की हड्डी सीधी होना ये हेल्थ का सबसे बड़ा बेसिक है। जिसकी हेल्थ की हड्डी सीधी रहती है वो सदा युवा रहता है, ऐसा योग कहते हैं। ये रीढ़ की हड्डी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर प्राणी में होती है, प्राणियों में होती है तो वो पीठ पे होती है, आड़ी होती है।
वृक्ष में होती है वो टेढ़ी मेढ़ी पैट होती है। एक मनुष्य ही ऐसा है कि उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी है और यहाँ नीचे से ऊर्जा ऊपर तक जाती है। तो इसके लिए नवकार मंत्र काम आता है। इसलिए मैंने कहा महामंत्र नवकार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दूसरी बात जानते हैं कि छोटी सी क्या कर सकते, वो कर सकते हैं मंत्र। मंत्र का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कुछ नहीं करें। कभी कभी मैं अमेरिका में बहुत सारी क्लासेस लिए और मैंने परेशान भी किया है। तो लोगों ने प्रॉब्लम रखे, अलका बहन क्या करे, टाइम नहीं मिलता है, एवरीवन इज बिजी, नो टाइम, व्हाट कैन वी डू। अलका बहन योगा करे कि मंत्र करे कि ध्यान करे, क्या क्या करे। तो मैंने सबको बोला कि शॉर्टेस्ट थिंग मैंने ढूंढ के लाई है आपके लिए, वो मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगी। उसके पहले हमें मंत्र को जानना पड़ेगा। मंत्र एक ऐसी संयोजना है कि जो अगर एक शक्ति बन जाती है और विस्फोटक शक्ति भी बन सकती है। ऐसा ही एक मंत्र आज हम आपको करवाने जा रहे हैं और उस मंत्र का नाम है अरहम। अरहम मंत्र करेंगे हम स्टार्ट में। हेल्दी रहने के लिए अरहम मंत्र की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और जैसे ओंकार का इंपॉर्टेंट है, आप हम सब लोग ओंकार को जानते हैं, ओंकार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओंकार को एक अक्षर ब्रह्म कहते हैं, परंतु अपने जैन धर्म में अरहम शब्द का बहुत इंपॉर्टेंट है। अरहम एक ऐसा है, अरहम का अर्थ है कि जिन्होंने आत्मा का साक्षात्कार किया है, जिन्होंने आत्मा का साक्षात्कार किया है, वो होता है अरहम का बीज मंत्र। और ये अरहम का बीज मंत्र यानी हमारे अरहतों का रोज हमें जाप करना है। शॉर्ट शब्द अरहम, इतने में हम जाप करेंगे तो वो वहां तक पहुंच जाता है। और अरहम वैसे होते हैं जो खुद अरहत्ता प्राप्त करते हैं और दूसरों की अरहत्ता जगाते हैं। अनंत गुणों के संपन्न, अनंत गुणों के संपन्न, हमारे आत्मा में भी सब है अनंत गुण, अनंत शक्ति है, परंतु अज्ञातवश ये सब सुप्त पड़ी हुई है और हमें ये अरहम करके इस शक्ति को जगाना है। तो आज का हमारा देखिए, हमारा मूल जो है वो श्वास तो है ही। श्वास के बिना हम जी नहीं सकते ऐसा नहीं है, कहते कि श्वास ही जीवन है, पर श्वास जीवन नहीं है। अगर श्वास जीवन होता तो हॉस्पिटल में हजारों साल ऑक्सीजन चला के व्यक्ति को जिंदा रखते, पर नहीं। एक क्षण आता है, डॉक्टर बोलते ऑक्सीजन निकालते, अब कुछ नहीं हो सकता, यानी हमारा प्राण चला गया। तो मतलब हमारी मूल शक्ति है वो प्राण शक्ति है। तो आत्मा और प्राण शक्ति ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आत्मा निकल जाता है शरीर से, प्राण निकल जाता है, तब हमारी डेथ होती है। तो ये प्राण शक्ति है, इसीलिए इसको आचार्य गुरुदेव तुलसी ने क्या कहा है, उसको कहा है कि ये जीवनी शक्ति है। तो आइए हम अरहम का ध्यान करते हैं। अरहम का ध्यान करने के लिए अभी हमने पिक्चर देखा तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आनंद भाई जी पिक्चर वापस दिखा सकते हो या तो मैं दिखा देती हूँ, कोई बात नहीं। ये देखिए पिक्चर देखिए। अरहम हमको ध्यान करना है तो क्या करना है, एक बार तो कोई भी स्थिति में ऐसे बैठना है जिसमें कंफर्टेबल हो। जो नीचे बैठे वो अगर पद्मासन लगा सकते नंबर 1 बेस्ट, ना कर सकते वो वज्रासन करे। अगर ये दोनों नहीं कर सकते तो पलाकी मारकर जिस भी स्थिति में बैठे, बस वो कैसी होनी चाहिए, पतंजल कहते स्थिर सुखम आसन, जिसमें स्थिर बैठ सकते हैं, आपको सुख मिलता है। आसन की ओर ध्यान न जाए, मंत्र की ओर ध्यान जाए। तो इसमें हमें सबसे पहले हमारे मूलाधार चक्र पर ध्यान देना है। पहला शब्द आएगा अ, दूसरा शब्द हृदय पे आएगा र, तीसरा शब्द झंकार करते हुए म करते हुए हम ज्ञान केंद्र पर जाएंगे और ये हमारी सारी शक्तियां जगाएंगे। नीचे होती है वो तेजस शक्ति होती है, हृदय पे आते वो अग्नि बीज होता है, फिर ह आकाश बीज होता है और फिर म का एक झंकार होता है। तो मैं चाहूंगी कि हम 3-4-5 मिनट, ज्यादा नहीं 4-5 मिनट के लिए अरहम का ध्यान करेंगे। तो आज योगा तो करने वाले हैं, योगा आप सब करते हैं, परंतु प्रेक्षा ध्यान का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, कैसा, हेल्दी लाइफ से उसका पूरा कनेक्शन है, वो मैं बताऊंगी। पर उसके पहले हमारी शुरुआत एक मंत्र से हो। आज आप ये मंत्र भी ले जाएंगे तो आपके साथ जब भी टाइम मिले गुनगुनाते जाइए, गुनगुनाते जाइए। तो चलिए 3 टाइप से किया जाता है, 3 टाइप से वो अरहम का मंत्र किया जाता है, परंतु हम यहाँ आपको एक ही इंट्रोड्यूस करेंगे। तो मैं नम्र निवेदन करूंगी आनंद भाई जी से कि आइए आनंद भाई जी, अरहम का बस 2-3 मिनट का ध्यान करवा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। अरहम बीज मंत्र का महत्व क्या है अभी आपने बताया,
और प्रेक्षा ध्यान में मंत्र प्रेक्षा के अंतर्गत अरहम बीज मंत्र का आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बहुत सुंदर तरीका बताया है हमें। जैसा कि आपने बताया, अरहम, अ, रह, म, और अंत में म का नाद। इसमें करीब करीब 14 सेकंड का समय हमें लगता है एक बीज मंत्र इसका उच्चारण करने में। आप कोशिश करें उसी के उतना समय, और नहीं हो आपके तो आप आपके अपने शरीर अनुकूल करें। तो सीधे बैठिए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, आसन का चयन करें। मुद्रा ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा लगा लें। बाई हथेली नीचे, वितराग मुद्रा लेफ्ट बताइए। हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, ये होगी हमारी वीतराग मुद्रा। और दोनों अंगूठे आपस में मिले हुए, इस तरह से मिलाते हुए दोनों हथेलियों को नाभि के पास गोद में टिका दीजिए। ये वीतराग मुद्रा या ब्रह्म मुद्रा कहलाती है। और ये ज्ञान मुद्रा, अंगूठा और तर्जनी को मिलाते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर रखा जाता है और शेष तीनों उंगलियां ऊपर आकाश की ओर या छत की ओर खुली हुई। तो दोनों मुद्राओं में से किसी एक मुद्रा का चयन करें, आसन का चयन करें। जो नीचे बैठकर कर रहे हैं, वज्रासन, सुखासन, पद्मासन या अर्ध पद्मासन, चारों में से किसी एक आसन में बैठे। और जो कुर्सी में बैठ रहे हैं, सीधे बैठे, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखें। अब हम अरहम बीज मंत्र का उच्चारण, जो हमें प्रेक्षा ध्यान में बताया गया, उसी के अनुसार हम करने जा रहे हैं। पहले शरीर को शिथिल करें। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दें और शिथिलता का अनुभव करें। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल शिथिल शिथिल। शरीर के पकड़ को छोड़ दें, मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। शरीर में किसी तरह की तनाव नहीं, शरीर के प्रति ममत्व का विसर्जन, और चित्त को आनंद केंद्र, छाती के बीचों बीच आनंद केंद्र, जिसे हृदय चक्र भी कहा जाता है, वहां पर केंद्रित करते हुए, वहां पर जो हमें प्रेक्षा ध्यान में बताया जाता है, गोल्डन कलर में, सुनहरे रंग में अरहम बीज मंत्र का उच्चारण। तो आप भी अगर हो सके तो वहां पे गोल्डन कलर का ध्यान करें आनंद केंद्र पर, और वहां पर अनुभव करें अरहम बीज मंत्र गोल्डन अक्षर में लिखा हुआ है। आनंद केंद्र पर सुनहरे रंग में अरहम बीज मंत्र का साक्षात्कार करें और तल्लीनता के साथ मेरे साथ साथ अरहम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। सांस भरें।
हम अपने आप को अरहममय अनुभव करते हुए हम ओके। इस ओके आनंद भाई जी। ओके। यस, ओम अरहम। बहुत सुंदर। सबको ये जाप दिन रात करने की कोशिश करनी है। अरहम कुछ नहीं करे तो आप इतना भी कर सकते हो। अरहम अरहम हाँ, ये अरहम। अरहम इसलिए भी एक जाप है में और भी जिससे हम एक तो करते हैं, इस तरह से भी किया प्रकार के। जाता है अलका जी। एक मिनट आनंद भाई जी। अरहम 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 अरहम। तो इस प्रकार हम तीन प्रकार इसके अलग अलग जाप कर सकते हैं। मस्त लयबद्ध तरीके से इस तरह से भी उच्चारण किया जा सकता है। आपको बिल्कुल आरंभमय हो जाना चाहिए और आपको प्रत्येक उच्चारण के साथ ऐसा लगेगा आनंद केंद्र पर गोल्डन अक्षर में अरहम बीज मंत्र उभर कर आ रहा है। जैसे यहाँ अरहम लिखा हुआ है और सुनहरे रंग में अरहम बीज मंत्र उभर रहा है। इस तरह से हम अरहम बीज मंत्र का ध्यान बहुत सुंदर है ये अरहम मंत्र। आप सिंपल अब बैठे बैठे उठे बैठे ऑफिस में कहीं भी रिलैक्स होना ये मंत्र कीजिए। और ये मंत्र क्यों करना है, एक गीतिका मेरे ननद जी की है, मैं आपको प्रस्तुत करती हूँ। अरहम का ध्यान लगाओ, अरहम का ध्यान लगाओ, सांसों का एक तारा बजाओ, अरहम का ध्यान लगाओ, ज्योतिर्मय चिन्मय है आत्मा, शुद्धात्मा ही है परमात्मा, कर्मों की दीवार हटाओ, अरहम का ध्यान लगाओ। हम क्या करते इस दुनिया में, इंद्रिय सुख को सब कुछ माना, वस्तु जगत का कण कण छाना, आत्मानंदी अब बन जाओ, आत्मानंदी अब बन जाओ। तो हमारा मन जो है वो घूमता रहता है, यही हमें हेल्दी नहीं बनाने देता है। तो हमें क्या करना है, मन को बांधना है। और इसके लिए प्रेक्षा ध्यान, ध्यान के सिवा आपके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो ये कहता है, दौड़ रहा मन तृष्णा से जखड़ा, परमारथ का पथना पकड़ा, अपने घर का परिचय पाऊं, अपने घर का परिचय पाऊं। तो बताइए यहाँ बैठे हुए सारे भाई और बहनें, कितने लोगों ने अपने घर का परिचय, आत्मा का परिचय पाया है? किसने अपनी आत्मा को देखने की कोशिश की है? तो बहुत अच्छी क्लास है आज की। तो हम प्रेक्षा ध्यान के द्वारा आपको बताएंगे कि आत्मा के द्वारा आत्मा को देखिए, स्वयं स्वयं को देखिए, अपने आप को देखो। बहुत देखी दुनिया, बहुत देखा, भौतिक वर्ड बहुत बड़ा है। ये भौतिक जग में घूमते घूमते आपको लगता है कि ओ हो मेरा यूरोप ट्रिप तो बाकी रह गया, ओ हो मुझे तो यहाँ जाना है, बस यही।
आंखें बंद करेंगे, उसके पास तो टेस्ला आई है, मेरे पास तो अभी टेस्ला भी नहीं है, कब आएगी मेरी टेस्ला? ओ हो, आंखें बंद, मेरा तो 3 BHK, मेरे फ्रेंड ने तो 5 BHK लिया है, अब कब होगा मेरा 5 BHK? बस भौतिक जग में घूमते रहते हो, भौतिक जग में रहते, पर ईश्वरीय अनुभव की अनुभव करना है तो अध्यात्म में आ जाइए, भीतर जाइए, भीतर जाइए। आनंद है, इतना आनंद है, आप टेस्ला लेंगे, घुमाएंगे, 2-4 महीने के बाद आनंद खत्म, दूसरी कोई गाड़ी अट्रैक्ट करेगी। तो ये आनंद है, ये तात्पुरते है, तात्कालिक नहीं है। और हमें चाहिए कि आत्मा आनंद, स्व आनंद, मैं और आनंद भाई जी आनंद में ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम भीतर जाने की कोशिश कर रहे हैं, भीतर जाने की, तो हमें भीतर जाना है। तो चलिए पहले थोड़ा सा जानते हैं कि हैप्पीनेस और हेल्दीनेस का क्या संबंध है लाइफ से, और इसके लिए क्या कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम करेंगे व्यायाम, आसन करेंगे, जिसे ज्यादा तो कुछ नहीं करेंगे, पर हम वार्म अप करेंगे। परंतु वार्म अप करने से पहले हम जानेंगे कि शरीर को क्यों हमें ठीक करना है। तो शॉर्ट में हम जानते हैं कि द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस, द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ हैप्पीनेस इज नॉट a question of a particular person, any particular community or sex. It is a question related to the associated to the with the all existence. All existence, health and happiness is very important to be requirement of Okay. each and every living being wants to be healthy and happy, because without these two things life is meaningless. Without these two things life is meaningless. And thus the health depends upon happiness? Does the health is depends upon the happiness, or happiness is the source of health? This is the question in so many people's mind. I have heard a lot of time people ask, happiness is important or health is important? But actually we can think these two parts are same. हम बोलते हैं ना, एक नाणे की दो बाजू है, बिल्कुल वैसे ही जहां हैप्पीनेस होगा वहां वो हेल्दी बन जाएगा, और जहां हेल्दी होगा तो उसको हैप्पी बन जाएगा। जैनिज्म के थ्रू हैप्पीनेस और हेल्दीनेस कैसे आ सकता है, ये भी पॉइंट हमें कवर करना है। तो जैनिज्म इज अ सोल ओरिएंटेड फिलॉसफी, Jainism is a soul-oriented philosophy, and for Bhagwan Mahavir, the supreme element was the soul. Supreme element was the soul, and he spoke everything developed about the soul. हमारे तीर्थंकर हैं, हम पूछते हैं, जानते हैं, क्या मानते हो? मानते हो तो आप हर एक व्यक्ति आत्मा को जानते, क्योंकि भगवान महावीर ने यही कहा है। पर हम अपने आप को केवल पुजारी मानते हैं, परंतु उनके रास्ते पे चलने की कोशिश नहीं करते हैं। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि तो अपनी हेल्थ जो है वो किस तरह हम करें। तो मेन जैनिज्म का सोल है, तो सोल प्योर होना चाहिए, आत्मा शुद्ध होना चाहिए। मैंने गीतिका बोली, शुद्धात्मा ही है परमात्मा। क्या आपकी आत्मा शुद्ध है? कभी आपने आत्मा को देखा है, शुद्ध किया? नहीं, किसी की भी आत्मा हमारी शुद्ध नहीं। आत्मा के ऊपर आवरण है, राग, द्वेष, मोह, माया, भौतिक आकर्षण, और जब तक आत्मा इसमें घिरी रही है, अनंत ज्ञान, शक्ति, कुछ भी बाहर नहीं आ सकता है। तो इसीलिए प्रेक्षा ध्यान कहती है कि सबसे पहले चित्त की शुद्धि करो, जब तक चित्त की शुद्धि नहीं हो नहीं सकती। सो देयर इज नो प्यूरिटी ऑफ द सोल, there is no happiness and no healthiness. Listen me properly and keep it in mind. If there is no purity of the soul, there is no health and no happiness. So happiness is needed to be a healthy life today. So you must watch the Atma. आत्मा को देखो। इसलिए ध्यान का सूत्र भी है, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखो, स्वयं को देखो, अपने आप को देखना ही ध्यान है। तो ये ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ध्यान, वी कैनॉट सेपरेट हैप्पीनेस फ्रॉम हेल्थीनेस। तो हेल्थीनेस एंड हैप्पीनेस बोथ आर द सेम, दे आर गोइंग हैंड इन हैंड। शॉर्ट, विदाउट हैप्पीनेस नो पीस ऑफ माइंड, नो emotionally satisfaction. So without happiness, there is no peace and
of mind, and then there is no health without happiness. So ठानम सूत्र में कहा गया है, ठानम सूत्र में बताया गया है कि सुख के, हैप्पीनेस के बहुत सारे प्रकार दिए गए हैं। इतना डिटेल वर्णन करने को मुझे समय नहीं है, परंतु पहला पॉइंट उसमें दिया है, वो दिया है कि आरोग्य, यानी हेल्थ इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। इसीलिए आचार्य महाप्रज्ञ जी हमेशा कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। जब तक हेल्थ अच्छी नहीं होगी आप क्या करोगे? अरे रास्ते का भिखारी भी अगर भीख मांगने बैठा है और पेट में दर्द आ गया, बुखार आ गई, तो सो जाएगा, वही कुछ नहीं कर पाएगा। और प्रधानमंत्री भी ये नहीं कहेंगे, वाह मैं तो प्रधानमंत्री, किसी भी डॉक्टर को बुलाता हूँ, कोई भी हेल्थ में प्रॉब्लम हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, मोदी जी 4 बजे उठते हैं और रोज योगा करते हैं, आसन करते हैं, 16 घंटे काम करते हैं। भगवान महावीर 24 घंटे खड़े रहते थे। कैसे? क्यों? हम बोलते हैं अच्छा हेल्दी खाओ, अच्छा चाहिए, ये चाहिए, प्रोटीन नहीं खाया, तुमने आज प्रोटीन नहीं खाया, अरे फाइबर खाओ। क्या खाते थे भगवान महावीर? कहाँ फाइबर था, कहाँ प्रोटीन था? क्यों वो हेल्दी थे? हाउ ही वॉज हेल्दी? जस्ट थिंक, भगवान महावीर वॉज हेल्दी। फूड नहीं खाते थे, खाना नहीं खाते थे, 6 महीने पानी नहीं पीते थे, पर आत्मा शुद्ध थी, प्योर आत्मा थी, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा था। सो हेल्थ इज द क्लोज कनेक्शन विथ योर इमोशन, माइंड एंड एवरीथिंग। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इतना शॉर्ट में मैं उस पर डिस्कस नहीं कर सकती, परंतु सबसे बड़ी बात है इंसान में कषाय। जब तक कषाय नहीं छूटते हैं तब तक हम कुछ नहीं करते। लास्ट में मैं इतना कहूंगी कि भगवान महावीर के साथ साथ महात्मा गांधी जी भी कहते थे, महात्मा गांधी जी भी कहते थे कि आई शैल नेवर फॉल इल। देखो ये कॉन्फिडेंसली क्या बोलते थे, आई शैल नेवर फॉल इल बिकॉज आई एम फॉलोइंग द पाथ ऑफ डिटैचमेंट। मैं किसी से अटैच नहीं होता, डिटैचमेंट, एंड ऑल्सो ट्राइंग टू कीप माई सेल्फ फ्रॉम अटैचमेंट, से दूर रहता हूँ। मैं वीतराग की साधना करता हूँ। बोलो भगवान महावीर की साधना, हमारे 24 तीर्थंकर की साधना, महात्मा गांधी ने कहे और वो महान महात्मा बने। हम क्यों नहीं महात्मा बनते हैं? हम क्यों नहीं महान बनते? गुरु मिले हैं ऐसे महान, गुरु मिले हैं ऐसे महान, दिया है कितना ज्ञान, दिया है कितना ज्ञान, थोड़ा सा तो जीवन में उतारो, आप भी हो जाएंगे महान, आप भी हो जाएंगे। अरे महान मत बनो, एक अच्छा इंसान बनो, सुखी इंसान बनो, खुश इंसान बनो, तो हमें सब कुछ है। तो प्रेक्षा ध्यान के साथ साथ महाव्रत का पालन करते थे सारे संत और तीर्थंकर। हम महाव्रत का पालन नहीं कर सकते तो कम से कम हमें अणुव्रत का पालन करना है। अणुव्रत क्या होता है वो भी हम शॉर्ट में जानेंगे। तो आइए अब करते हैं हम थोड़ा सा, पहला सुख निरोगी काया, तो शरीर के लिए कुछ करते हैं, छोटा सा वार्म अप करते हैं। देखिए आनंद भाई जी भी अबाउ 70 है और मैं भी अबाउ 70, पर हम एकदम मस्त हंसते हंसते रहते, खेलते रहते, दिन रात 365 दिन नॉन स्टॉप क्लास का वर्ल्ड रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो आनंद भाई जी आपको कुछ ऐसे आसन बताएंगे कि जिसके बहुत सारे फायदे हैं और जिसका आपको सहजता से कर सकते, खड़े रहते रहते कर सकते, बस 1 मिनट खड़े रहेंगे तो उसको आसन को कर लो। और आपको मैंने बोला नौकार मंत्र सांस सांस में, तो हम बातों बातों में भी कर सकते, काम काम में भी कर सकते। आप बोलेंगे कैसे? जैसे मैं लेडीज को बोलती हूँ किचन में खाना बनाते हो, माइंड प्योर चाहिए, तो आप जब खाना बनाओगे, सब्जी रखोगे, तब आप क्या करो, वाह, नौकार मंत्र को याद करो। पहला कलर कौन सा है ऐसा याद करने का, हल्दी है, हल्दी है तो यहाँ का कलर याद करने का, हल्दी का कलर कौन सा है, नमो अरहंतानम। नमक डालोगे, व्हाइट कलर, नमक डालते थे नमो अरहंताणम, तीखा डालेंगे, रेड कलर डालेंगे, नमो सिद्धानम, हल्दी डालोगे, नमो आयर्याणम, सब्जी डालोगे, ग्रीन सब्जी, नमो उवच्छायाणम, और लास्ट में बोलो वाह सब्जी अच्छी बन रही है, नमो लोए तो बताओ नम, सब खाएंगे, हेल्दी रहेंगे, भावना डाल दो उसके साथ में। इस तरह ऑफिस में गए बैठे, वाओ नमो अरियंतानम, अब तो आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, नमो सिद्धानम, आप आइए दर्शन कीजिए और आज का दिन। तो इस तरह भगवान महावीर के साथ आचार्य महाप्रज्ञ कहते, सुबह उठते जिसका चक्का अच्छा फिरता है उसका दिन अच्छा जाता है। उठेंगे लेट, ओहो लेट हो गए, अब क्या होगा, बस चक्का उल्टा। तो हमारी लाइफस्टाइल सुबह उठने से शाम तक कैसी होनी चाहिए वो भी एक अलग क्लास हो सकती है। आनंद भाई जी वार्म अप के लिए
बस थोड़ा सा खड़े हो जाइए, सभी जगह पे अपने ही खड़े हो जाइए। आनंद भाई जी बताते जाएंगे, वैसे करते जाइए। 2-3 आसन लेंगे, ज्यादा नहीं समय लेंगे, और मैं आपको चेयर पे कुछ बता दूंगी, तो आप 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए हम वार्म अप का सेशन कर लेते हैं। माइक हैंड ओवर टू आनंद भाई जी। खड़े रह जाइए, बैठे बैठे आप बहुत हो गया, थोड़ा खड़े रह जाइए। यस, हाथ हिलाते जाइए, रिलैक्स। उसमें भी आप जल्दी जल्दी हाथ को हिलाओ, सबको बॉडी को ढीला कर दीजिए। बहुत बढ़िया। देखो वॉक कर रहे हैं आनंद भाई जी, वॉक करो, बैठे बैठे रनिंग करो। बाहर नहीं जाते कोई बात नहीं, जगह पे रनिंग करो। वाओ, देखिए आनंद भाई जी को रनिंग हो रही है, गुड जॉब। वाओ, थोड़ा सा रनिंग करिए। वाओ, सुबह से आज आपने खाना ब्रेकफास्ट तो किया होगा, पर योगा नहीं किया है। सबको करना है। वाह आनंद भाई जी, चलिए नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट आसन। आनंद भाई जी पहला आसन। यस, ये जो कूदना है, ये आप कूदते रहिए और देखिए कि कितना बार हम कूद सकते हैं, तो हमारी कैपेसिटी मालूम पड़ेगी। तो आनंद भाई जी ताड़ासन के लिए रेडी। पहला आसन बताएंगे आनंद भाई जी, ताड़ासन। ताड़ासन होता है वो बहुत उपयोगी है। आलस जाता है, सबका आलस जाता है, और सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले ताड़ासन। यस, दिस इज द सिंपल थिंग, ताड़ासन। बहुत सुंदर दिखाया आनंद भाई जी ने। चलिए आप आनंद भाई जी को फॉलो करेंगे, तब तक आप जानिए, इट हेल्प्स टू इंक्रीज द हाइट फास्टर एंड इट इज यूजफुल फॉर किड्स। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव योर पोस्चर ऑल्सो, आप एकदम स्ट्रेट हो जाओगे। हेल्प्स टू योर हिप्स, हिप्स के लिए भी उपयोगी है। इट हेल्प्स टू गेन द फ्लैटर बेली, बेली जो प्रॉब्लम है, पेट बढ़ता है, पेट को कम करने के लिए भी बहुत अच्छा है। एंड हिट it helps to brighten the skin complex also. It's reduce the around the eyes, आंखों के बाजू में जो चक्र आते, काले चक्र, लोग बहुत परेशान रहते हैं, उसके उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। तो आइए आनंद भाई जी, अभी आप करके दिखाइए। आनंद भाई जी बहुत सुंदर आपने वीडियो दिखाया, तो अभी आनंद भाई जी आपको करके दिखा रहे हैं। स्टार्ट से देखो, स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। स्टेप 1, स्टेप 2 देखिए। मैं बताती जाती हूँ, आनंद भाई जी आप करते जाइए। पहले स्टैंड स्ट्रेट, स्टैंड स्ट्रेट, join the feet, join the feet and interlock your hands, interlock, or indenting fingers should be inside, both fingers should be touch each other. Turn the palm, turn the palm, and hand should go up, up and up. And you have to stand on the toes. You have to stand on the toes. Straight the body. Bring heels down slowly and inhale. Bring the hands down from side. Relax, whole body relax. Do once again, Anand Bhaiji, step by step. Number 1, stretch, joint your hands and stretch them as much possible as stretch. And take breathing and up your arms, touching your ear, touching your ear. Stand on the toes, stretch the body. Wow. Try to stand for some seconds according to your convenience, practically possible. And day to day, if you are doing practice, you can stop much time, and that will be very useful. Now bring the heels down. चलो एक बार लास्ट कर लेते ताड़ासन, सब देख के कीजिए। स्टेप बाय स्टेप आनंद भाई जी, दो स्टैंड स्ट्रेट, join the feet, interlock hand, entering the fingers inside, and turn it. Turn your palms, keep hand side below navel, and stretch the arm and go up, up and up. Stand on toes, straight the body, bring as much possible stretch. ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच देने की कोशिश करें, जितना पॉसिबल है खड़े रहिए और धीरे से
टोज नीचे कीजिए, पैर सीधे और धीरे से हाथ नीचे। चलिए, इससे हमारा आलसीपना जाता है, इट इंक्रीज हाइट, रिमूव कॉन्स्टिपेशन, रिमूव हो जाता है, इस रिमूव फटिकनेस, आलस दूर हो जाता है। तो ये बहुत उपयोगी आसन है। इसी में वेरिएशन दिखाइए आनंद भाई जी, साइड में हाथ टर्न कीजिए, आनंद भाई जी साइड में हाथ टर्न कीजिए। इसमें हम वेरिएशन देखेंगे, हाथ को लेफ्ट एंड राइट टर्न करना है, लेफ्ट एंड राइट। आप हाथ को खींचे ऊपर, according to the Tadasana, you do the stretch on upper side and go to the left side. Go to the left side. Turn, 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 turn. And this is a great thing. Come in center and about right side. Right, left, left, right. इस तरह कीजिए और धीरे धीरे उसमें रोकना भी सीखिए। रुकेंगे तो आपकी साइड के पूरे प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाएंगे, पीठ भी अच्छी हो जाएगी, कमर के लिए बहुत अच्छा है। और थोड़ा आनंद भाई जी अभी बैक करना है, सेंट्रल आ जाइए और थोड़ा बैक से टर्न कीजिए, पीछे जाइए, पीछे पीछे, बैक टर्न कर लो। अभी हेड टर्न और देखिए ऊपर, देखिए ऊपर, देखिए स्काई की तरफ, और बैक 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 एंड बैक। वाओ, ये पेट कम करेगा, गर्दन खींचेगे, वैसे थायराइड, पैराथायराइड के लिए बहुत उपयोगी है। तो गुड वन, दिस इज द बेस्ट वन। एंड नाउ सेकंड आसना वी विल डू। Second asana, Anand Bhai ji will show you. That is called a Padmasana. आनंद भाई जी एक बार आसन दिखा दीजिए, मैं दिखा देती हूँ। दूसरा आसन हम करने जा रहे हैं, वो आसन क्या करेगा, आप कितना झुक सकते हैं, आप कितना फ्लेक्सिबल हो, आपकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है, ये हमें पता चलेगा। तो हमें अगर अपने आप को फ्लेक्सिबल करना है तो ये आसन करना बहुत जरूरी है। ये फायदेमंद तो है ही, उसके साथ साथ आपकी जो क्या बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत बहुत सुंदर तरीके से अच्छी हो जाएगी। तो एक बार देखिए इसको, पाद हस्तासन। जिस तरह हमने ऊपर बॉडी को खींचा, अब उल्टा करिए, उल्टा। ये शरीर को मजबूत करेगा, पेट की बीमारी दूर करेगा। ध्यान रखें, जिनके रीढ़ के हड्डी में कोई शिकायत है, पेट में कोई बीमारी है, वो प्लीज आसन ना करे, नॉर्मल व्यक्ति करे। किस तरह करना है वो आनंद भाई जी पहले देखेंगे। तो सबसे पहले दोनों पैर जुड़े हुए रहेंगे और आपको नीचे झुकना है। इसका बेस्ट पोजीशन होता है, अपना नाक दोनों घुटने के अंदर जाता है और हाथ जमीन पे टच होते हैं। अब आपके जितने ऊपर हाथ रहेंगे, आप समझो कि आपकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है। जिसके हाथ जमीन पर लगते हैं, नाक घुटने को लगता है, ही इज द बेस्ट। चलिए, मैं आसन को दिखाया, अभी आनंद भाई जी आपको करके दिखाएंगे। तो कॉन्सेंट्रेट टुवर्ड्स आनंद भाई जी। एक बार दोनों हाथ ऊपर कीजिए, ऊपर ऊपर, दोनों हाथ आनंद भाई जी ऊपर कीजिए। यस, ब्रीदिंग एंड रेज योर हैंड स्ट्रेट अबाउट योर हैंड, sky, keep sky towards. Slowly breathing and bend towards and touch the right foot, right hand and left. झुकते जाइए, झुकते जाइए, गर्दन भी नीचे करते जाइए। स्लोली ब्रीदिंग एंड गो डाउन, गो डाउन, गो डाउन। टच, ट्राई टू टच द नी, नोज मस्ट टच टू द नी। गर्दन जितनी अंदर ले सकते हैं अंदर लीजिए। हाथ कोशिश कीजिए जमीन को टच होने चाहिए, पर घुटने नहीं मुड़ने चाहिए। बिपिन भाई शाह, मिसेस बिपिन भाई, घुटने मुड़े हैं, प्लीज कीप इट माइंड। knees must be straight. That is the very important point, this asana. Knees must be straight. आनंद भाई जी एक बार knees झुका के दिखाइए, knees झुकाइए। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे, पहले पीछे की ओर थोड़ा झुकेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। पहले नीचे आएंगे सामने देखते हुए, और यहाँ तक आने के बाद गर्दन को नीचे करते हुए पूरा नीचे झुकते हुए ललाट को घुटनों पे लगाने का प्रयास करेंगे। और ये जो है यहाँ पे इस तरह से, ये अंदर होना चाहिए, कर्व होना चाहिए, सीना बाहर और कमर अंदर। 1 2 3, धीरे धीरे, स्लोली, बिल्कुल स्लोली। हथेलियां जमीन पर,
ललाट घुटनों पर। ऐसे पोजीशन में रहने की कोशिश कीजिए। स्पाइन बिकम फ्लेक्सिबल, improve your digestive system, reduce overweight, anger. श्वास भरते हुए Also promote. धीरे धीरे हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, रिलैक्स। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एक लास्ट आसन आनंद भाई जी बताएंगे, और ये आसन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इस आसन को बहुत ज्यादा वैल्यू देती हूँ, इसलिए कि आप अगर सर्च करोगे तो आपको पेज टू पेज सैकड़ों हजारों ऐसे गुण मिलेंगे कि जो इसमें दिए हुए हैं। और इस आसन का नाम है स्क्वाट आसन। इस आसन का नाम है स्क्वाट आसन। तो अभी चित्र शेयर कीजिए। हाँ, मैं पिक्चर शेयर करती हूँ। पहले ये स्क्वाट आसन है, ये भी परफेक्ट नहीं है और नीचे झुकना है, परंतु ये स्क्वाट आसन करने से आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होती है। इसमें बहुत सारे बेनिफिट है। बेनिफिट आप नेट पे भी देख सकते हैं। हम ज्यादा समय बेनिफिट में नहीं लेंगे, तो एक बार हम करके दिखाएंगे, फिर उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, एक बार हमें करना है। घुटने अपने 90 डिग्री से तक मुड़ने हैं, पर घुटने के पास नहीं जाना है, पीछे झुकना है। देखिए, यस, दोनों हाथों को सामने इस तरह से फैलाते हुए रीढ़ की हड्डी को सीधे रखते हुए झुकना है। घुटने पंजों से आगे नहीं आने चाहिए। ये घुटने जो है पंजे से बाहर नहीं आने चाहिए। इस तरह से घुटने बाहर नहीं आएंगे। घुटनों को यहाँ रखते हुए, सीधे रखते हुए आपको झुकना है इस तरह से। पहले आप इसको हाफ पोज तक इतना ही झुके, एक बार रुके यहाँ पे, धीरे धीरे ऊपर। दूसरी बार में आपको उतना ही आपको उतना ही करना है जितनी आपकी कैपेसिटी है। कैपेसिटी से अधिक मत कीजिए प्लीज। यस, आगे नहीं झुकना है, एड़ियां नहीं उठनी चाहिए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। हमने दो तरीके से किया। एक बार हमने आधा झुका, दूसरी बार में पूरा। तो आप अपने शरीर की क्षमता अनुसार करें। एक बार और मैं करके बता रहा हूं। दोनों हाथ सामने, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए, धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर। ओके, थैंक यू आनंद भाई जी। इट्स ओके, थैंक यू आनंद भाई जी। थैंक यू एवरीवन। जस्ट आप देखिए, जितने रुक सकते रुकिए, रोकने की कोशिश कीजिए। और आपको मैं, यस, थैंक यू आनंद भाई जी। इसमें पैरों में गैप पड़ते हुए इस बार हम करेंगे। पैरों में गैप रहेगा। यस, प्रकाश जी स्क्रीन हटा लीजिए एक बार। दूसरा तरह से बता रहा हूं मैं। पैरों में गैप कंधों के बराबर, शोल्डर से बराबर गैप रखते हुए। 1 2 3 4। इसमें बहुत वेरिएशन है। अभी हम इतना ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। तो ये दो वेरिएशन आप ध्यान में रखिए, और बहुत सारे वेरिएशन नेट पे जाके भी आप देख सकते हो। रिलैक्स। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बात है ना, हम बहुत इजीली कहीं भी कर सकते हैं। आप सोचो कि मैं बोलती हूँ ना, हर टाइम चलते बोलते, आप चेयर पे बैठे हो, आप ऑफिस के लिए जा रहे हो, उठ गए, गए, जाते ही पहले ऐसे करो ना, चेयर पे ही। आप चेयर पे बैठना है। ऑफिस में गए, ये आपकी चेयर है, चेयर में बैठना है। तो एक बार स्क्वाट कीजिए, 1 2 3, बैठ गए। बस थोड़ा सा कर लिया, बैठ गए, फिर काम हो गया, बाप रे आलस आ गया। अरे हाँ, स्क्वाट करते बहुत मजा आएगा। अपने आप को बोलो कि मुझे अच्छा बनना है, और आप जितना वो उसको करते रहोगे, मुझे लगता है कि वो बहुत आपको फायदा देने वाला है। और स्क्वाट का सर्च कीजिए आप, आपको कितने बेनिफिट्स मिलेंगे, कितने मिलेंगे, वो सब आपको वहां दिया हुआ है। तो एक बार स्क्वाट के बारे में आपको मैं ज्यादा नहीं बताते हुए एक लास्ट पॉइंट बता देती हूँ, और हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते। देखिए, रोज अगर आप 20 स्क्वाट करेंगे डेली, तो आपका बैलेंस देखो इम्प्रूव होगा, आपके लेग्स के मसल्स बहुत अच्छे हो जाएंगे,
आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा, इससे कैलोरीज बहुत अच्छी बर्न होती है, और इसका जो कोर होती है, अपने कोर्स के मसल है वो बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं, टोन्स बन, लेग्स मसल्स, मेक यू बेटर रनर एंड गुड कार्डियो वर्कआउट। और ये तो मैंने आपको सिंपल बात बताया, आप पेज खोलोगे तो सैकड़ों बेनिफिट्स मिलेंगे। क्या इतनी छोटी सी बात हम नहीं कर सकते? अपने आप से पूछ लीजिए आप और कर लीजिए। योगा क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, योगा क्या होता है और क्यों करना चाहिए। तो एक बात ध्यान रखिए, योगा में दो एक्शंस होती है, कीप इट इन माइंड। योगा में दो एक्शन होती है, क्या होती है? एक तो वो दबाता है और एक वो खींचता है। दबाता है और क्या करता है? वो खींचता है। तो अगर ये गर्दन है, ये गर्दन को हमने दबाया दबाया, और हमारी टुड्डी कहाँ, यहाँ एक खड़ा है, उसमें दबा दी दबा दी दबा दी, तो आप देखो यहाँ दब गया है। ये थायराइड पैराथायराइड सब दब गए, और पीछे का भाग देखिए गर्दन का, वो थोड़ा सा स्ट्रेट, मतलब वो खींच गया है। तो एक बार दबा होता है, एक बार खींच। इससे क्या होता है? सारे रक्त प्रवाह अच्छे होते हैं, वहां के प्रॉब्लम्स होते हैं। रोज अगर ऐसा करोगे तो स्पॉन्डिलिसिस कभी होगा नहीं, पीठ की गर्दन होगी नहीं। और फिर गर्दन को सीधा करे, सीधा करे, सीधा करे, सीधा, और फिर पीछे 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 पीछे, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, जैसे कि गर्दन आपके है ही नहीं। छोड़ो ना, पीछे लोग पकड़ के रखते हैं और नहीं छोड़ते, नहीं। पूरा छोड़ो, पूरा छोड़ो, आंख बंद करो और अनुभव करो। वाह, इसका थोड़ा सा स्ट्रेस कमर पे भी आता है, आना ही चाहिए। थोड़ी सी पीठ की हड्डी पीछे झुक गई है, अंदर गैप हो गया है। और देखिए मेरा ये जो थायराइड पैराथायराइड विशुद्ध केंद्र कितना खींच रहा है, वाह, कितना खींच रहा है। अभी दब गया था, अब खींच गया है, और मेरा पीछे का भाग दब गया है। तो इस तरह खींचाओ दबाओ, इससे सारे एक्टिव हो जाएंगे, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। तो आज स्काई की तरफ देखिए, आकाश चक्र को देखिए, सारा विशाल आकाश चक्र का नीला रंग हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। इस तरह पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए, कोई विचार मन में ना लाइए। आंखें बंद करके कहाँ कहाँ तनाव आता है उसका अनुभव करते हुए, गर्दन सीधी, गर्दन सीधी, सीधी, गर्दन जगह पे आ जाएगी। गर्दन जगह पे आ गई, अब धीरे धीरे क्या करना है? गर्दन को मोड़ना है, मोड़ना है, मोड़ना है, लेफ्ट साइड जाना है, लेफ्ट साइड। और अपना हो सके तो कान कंधे को टच करना है, कान कंधे को टच करे, कान कंधे, पर कान कंधे को टच नहीं होता। देखिए कुछ लोगों ने कंधा उठा लिया, मनीष भाई कंधा ढीला छोड़ दीजिए, कंधे को ढीला छोड़ दीजिए, कंधा नीचे ही चाहिए, कंधे को उठाना नहीं है। हमारे गर्दन को रिलैक्स करना है, फ्लेक्सिबल करना है, और उसको कंधे तक पहुंचना है। मुझे पता है कुछ ना कुछ लोग कंधा तो उठाएंगे, तो कंधा नहीं उठाना है, गर्दन को बोलना है दब जाओ दब जाओ, कंधे को टच करना है, फिर सीधे 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 सीधे, गर्दन जगह पे लाइए, और फिर राइट साइड राइट साइड राइट साइड राइट साइड, झुकाते जाए। कितनी छोटी सी बात है, अगर इतना करोगे तो कितना बेनिफिट होगा आप सोचो। ये गर्दन के बहुत सारे प्रकार है, दबाते जाइए और फिर गर्दन जगह पे लाइए। एक लास्ट इसका वेरिएशन, गर्दन को घुमाना है चक्र की तरह, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो एक बार देखिए, गर्दन को नीचे कर दीजिए, क्लॉक वो खाड़े में डाल दीजिए, नंबर 1, लेफ्ट साइड के कान को टच कीजिए, कंधे को टच कीजिए, तो रुक के हल्का सा फिर पीछे जाइए, बैक, फिर राइट साइड आ जाइए, फिर सामने आ जाइए, उल्टे साइड से कीजिए, लेफ्ट, बैक, राइट एंड सेंटर। दैट्स ऑल, सिंपल सी थिंग है, चक्र करना है। वाह, इससे आपके बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। ये एक बार नहीं करना है, कम से कम 5 बार एट ए टाइम करना है, फिर दूसरे साइड से 5 बार करना है। बैठे बैठे करो, काम में रिलैक्स होते टाइम कीजिए, ये बहुत उपयोगी है आपका। योग तो बहुत जरूरी है, सबके लिए आवश्यक है, तो योग करना तो चाहिए ही हमें। तो आपने ये देख लिया, तो चलिए एक चेयर पे मैं कुछ बताती हूँ। लोग काफी चेयर पे बैठते हैं, नीचे बैठ भी नहीं पाते, बिपिन भाई भी कह गए। तो हम चेयर पे बैठे ना, तो पीछे जाइए, चेयर को पकड़ के पीछे जाइए, तो स्पाइन पे पूरा तनाव दीजिए, और पीछे की साइड पकड़ने की कोशिश कीजिए, कुर्सी के पीछे की साइड पकड़नी है, और थोड़ा उठना है, हल्का सा उठना है, हल्का सा उठना है, तो हमारी स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम
यहाँ नहीं पकड़ सके पीछे तो यहाँ पकड़ो, पर हमारा स्पाइन को स्ट्रेट करने की कोशिश करो, तो इससे हमारा स्पाइन बहुत अच्छा हो जाएगा। और उल्टा कीजिए, जैसे पादासन में किया वैसे सामने जाके हाथ जमीन पे रख दीजिए। देखिए, दोनों पैर अलग कीजिए और हाथ जमीन पे टच कीजिए और गर्दन अंदर कीजिए। देखिए, पेट दब रहा है, पेट दब रहा है, पेट दब रहा है, पेट कम हो जाएगा। कितना अच्छा, सिंपल। और चेयर पे भी स्ट्रेट बैठिए एक बार, तो आपने देखा पीछे स्पाइन को हमने दबा दिया, आगे पेट को दबा दिया। अब आइए साइड इफेक्ट के लिए क्या करते हैं, कुर्सी के साइड में, बाजू में, लेफ्ट साइड में, 1 2 3, एक ही साइड है, 4 एंड 5, ये हो गई लेफ्ट साइड। राइट साइड, 1 2 3 4 5, अगेन दोनों साइड एट ए टाइम, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। वाह, जितना तनाव दोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स। और इसे भी करने में कोई वक्त को प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले आसन को करके थोड़ा स्थिर भी रखना जरूरी है। तो आपका राइट हैंड लीजिए, राइट हैंड लेफ्ट कंधे पे रख दीजिए, राइट हैंड लेफ्ट कंधे, और लेफ्ट हैंड से पूरा टर्न कीजिए, अपने पीठ को टर्न कीजिए। और फिर राइट हैंड के साइड से पीछे देखिए, राइट हैंड से पीछे अपना जो हाथ है ना, राइट हैंड मतलब लेफ्ट कंधे के पीछे देखिए, पीछे पीछे गर्दन को पीछे कर दीजिए, कितना पीछे कर सकता है। रुक जाइए, अनुभव कीजिए, मेरी कमर पूरी ट्विस्ट हो गई है। वाह, मेरे हाथ भी टर्न हो रहे हैं, तनाव आ रहा है, मेरे कोहनी मुड़ गई है। वाह, सब जगह कहाँ तनाव है, देखिए। सीधे हो जाइए, हाथ नीचे कर दीजिए, दूसरा हाथ नीचे, फिर लेफ्ट हैंड राइट पे रखिए और फिर अपने गर्दन को करते हुए राइट साइड में टर्न हो जाइए, राइट साइड में टर्न हो जाइए। और इसमें रुकिए। ये तो आप काम करते करते बीच में कर सकते हो, ऑफिस में बैठे बैठे, घर में। तो चलिए, आसन छोड़ दीजिए, बहुत सारे प्रकार है करने के लिए, तो बहुत कम पड़ेगा समय। मैं घड़ी की ओर देख रही हूँ, भाग रही है घड़ी। हमें घड़ी को देख के काम करना है, 8:30 बजे पूरा करना है। ध्यान भी थोड़ा करना है, आपसे बातें भी करनी है, आपसे फीडबैक भी लेना है। तो शॉर्ट में हम देखेंगे कि हमने पहले देखा कि हेल्थ का और जैनिज्म का बहुत बहुत ज्यादा कनेक्शन है। तो मेन जो कनेक्शन है वो आत्मा का है। आत्मा की प्यूरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो प्यूरिटी ओनली एंड ओनली बाय प्रेक्षाधन। इसीलिए प्रेक्षाधन के गीत एक सुनोगे ना, मैं आपको गीत का वीडियो भेजने वाली हूँ। एक सासू और बहू ने गीत गाया है और गीत का पूरा मीनिंग बताया, और वो आपके लिए कितना यूजफुल रहेगा, आप देख लेना, वो बहुत अच्छा है। प्रेक्षाधन क्या है? आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। तो ये ध्यान करना क्यों है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। और फिर हमें ध्यान करना है, लाफिंग भी करने का है, तो लास्ट में करेंगे लाफिंग। तो आइए हम जानते हैं कि हमें क्यों करना है ध्यान। ध्यान क्यों करना है? कुछ लोग आलस करते हैं ध्यान करने के लिए, तो आसन अच्छे लगते पर ध्यान नहीं करते, परंतु ध्यान बहुत जरूरी है। ध्यान के अभ्यास से जीवन बदलता है, ध्यान के अभ्यास से जीवन बदलता है। कदम कदम पर साधक को मिलती सफलता है, मिलती सफलता है, मिलती सफलता है। वर्तमान में जीने की यह अनुपम शैली, अनुपम शैली, शांत सुखी जीवन जीने की नई पहेली, नई पहेली। तन के मन के रोगों का हर खतरा टलता है, तन के मन के रोगों का हर खतरा टलता है। तो इतना अच्छा उपाय है, तो मेडिटेशन क्यों नहीं, मेडिसिन क्यों? सब मेडिसिन के पीछे भागते हैं। सर दर्द हो गया, गोली दो भाई, कोई बहुत माथा दर्द हो रहा है, सर्दी हो गई है, गोली ले लेंगे। आपको पता नहीं उसके कितने साइड इफेक्ट होते हैं। परंतु प्रेक्षा ध्यान एक ऐसा ध्यान है
कि जो आपको फायदे ही फायदे देने वाला है। भगवान की इतनी कृपा है कि हमें गुरु मिले हैं ऐसे महान, और न पावन आत्मा होती न जीवित मंत्र रहते, देश कभी का मिट जाता अगर ऐसे संत ना होते, अगर ऐसे संत ना होते। हमारे संतों ने कितना अभ्यास किया हुआ है, कितना हमारे तीर्थंकरों ने हमें बताया है। आपको एक बात बता के मैं ध्यान की ओर चलूंगी। देखिए, आज शरीर के लिए बहुत सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर गलो गली में मिलेंगे, गांव गांव में मिलेंगे, साइकोलॉजी के बहुत सारे साइकेट्रिक डॉक्टर मिलेंगे, पर इमोशन का अभी तक कोई डॉक्टर नहीं, इमोशन का डॉक्टर नहीं। परंतु हम भाग्यवान, हमारे तीर्थंकरों ने इसका सारा रिसर्च किया हुआ है, और हमारे सामने रिसर्च वो नहीं करते थे, उनकी लाइफस्टाइल ने हमें सिखाया, हमने उससे रिसर्च करके निकाला है। और हमारा भावना एक बहुत बड़ी चीज है, जिसको कहते हैं अनुप्रेक्षा। तो आपकी जो जो समस्याएं है, उस समस्याओं का समाधान है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा क्या है? हमारे में जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन है। तो प्रेक्षा ध्यान एक क्या है? समाधान है, अनेक समस्याओं का समाधान है। करो ध्यान, करो ध्यान, होगा आपका कल्याण। करो ध्यान, होगा आपका कल्याण, मिलेगा अनेक समस्याओं का समाधान। प्रेक्षा क्यों? क्योंकि प्र अधिक इक्ष, प्र धातु से इक्ष जुड़ा है। प्र मतलब गहराई से, इक्ष मतलब देखो। क्या देखो? दुनिया भर हम दुनिया को देखते रहते, वो आता है अरे यार वो तो हमेशा लेट आता है, अरे यार ये तो ऐसे ही कपड़े पहनती है, बस वही बात करते हैं। कभी ये नहीं सोचते बाहर जाना है तो खड़े रहेंगे, कौन सी साड़ी पहनूं, ये तो बहुत पुरानी हो गई है यार, आजकल ये चलता नहीं। 10 मिनट तो सोचने में लगे। कभी ये सोचा मैं क्या करूं तो भगवान खुश हो जाएगा, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे कर्म कट जाएंगे? थोड़ा तो ऐसा सोचिए। तो ये है प्रेक्षा ध्यान, अपने आप को गहराई से देखना है, और खुद का सत्य खुद ही ढूंढ सकते, दूसरा नहीं ढूंढ सकता। अपना सच में से जाओ, मेरे हुए का पाए। स्वयं का सत्य स्वयं खोजे, और दुनिया से मैत्री करे सबसे, बस यही सॉल्यूशन है। तो आइए, प्रेक्षा ध्यान बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रेक्षा ध्यान केवल एक ध्यान नहीं है, बाकी लोगों में देखोगे, और जैन के ध्यान में फर्क ये है कि ये आगम में से लिया, ये पूरा 24 तीर्थंकरों ने जो किया उस पर बेस आगम। और एक एक चीज है, कायोस्वर्ग है। कायोस्वर्ग कैसे खड़े रहते थे ये घंटों घंटों, कायोस्वर्ग क्या होता है, इसका रिसर्च यूएस में भी हुआ है, और उसके बहुत सारे रिसर्च पेपर भी मेरे पास है। बहुत सारा टाइम मिलेगा तब मैं आपको ये बातें बताऊंगी, परंतु साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि मेडिसिन इज नॉट यूजफुल फॉर यू, एंड मेडिटेशन इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर एवरीवन। एंड विशेष करके जैन प्रेक्षा ध्यान इसलिए अच्छा है कि इसमें अनुप्रेक्षा है, इसमें शरीर प्रेक्षा है, इसमें रंगों का ध्यान है, बहुत सारा है। तो नेक्स्ट टाइम एक क्लास रखिए, केवल नवकार मंत्र का ध्यान करेंगे इसी भाव के साथ। मैं आनंद भाई जी को बताती हूँ, आनंद भाई जी आपको 5 मिनट का ध्यान कराएंगे, और उस 5 मिनट के बाद हमारे क्वेश्चन आंसर और अपने सवाल जवाब और फीडबैक। तो चलिए आनंद भाई जी। धन्यवाद अलका जी। जैसा कि आपने बताया, प्रेक्षा ध्यान शब्द का अर्थ आपने बताया, प्र और इक्ष धातु से बना हुआ। और प्रेक्षा ध्यान हमारे जैन आगम के आगम पर आधारित ध्यान पद्धति है। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने इसे बहुत ही सुंदर तरीके से डेवलप किया है, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इसको हमें एक पूरे निचोड़ निकाल के हमारे सामने रखा है। तो आज हम दीर्घ श्वास प्रेक्षा, दीर्घ श्वास प्रेक्षा का ध्यान करने जा रहे हैं। दीर्घ श्वास यानी लंबा श्वास, श्वास पे हमारा ध्यान टिकाते हुए श्वास को देखना है। तो ध्यान के लिए सब तैयार है? यस। 5 मिनट का हम ध्यान करेंगे। तो पहले आसन का चयन करना है। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए मुद्रा, जैसे मैंने पहले ही बताया, 2 मुद्राओं में से किसी एक मुद्रा का चयन करें। आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए बिल्कुल सीधे बैठे। स्टार्टिंग हम कायस्थ से करते हैं। कोई भी ध्यान हो, पहले शरीर को शिथिलीकरण का सुझाव दिया जाता है, तो हम पूरे शरीर को एक साथ शिथिलता का सुझाव देंगे। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक शरीर के प्रत्येक अवयव, शरीर के एक एक ऑर्गन शिथिल हो जा,
शिथिल हो, शिथिल जा, शरीर की पकड़ को छोड़ते जाइए, शरीर को बिल्कुल ढीला ढीला छोड़ दीजिए। शरीर में किसी तरह की हलन चलन नहीं, पूरी स्थिरता, पूरी जागरूकता रखते हुए शरीर में शिथिलता का अनुभव करें। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, पूरा शरीर शिथिल हो रहा हो रहा, पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। अनुभव कीजिए पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक शरीर के प्रत्येक अवयव पूरी तरह से शिथिल हो गए। पूरे ध्यान काल तक कायोस्थिर की यही मुद्रा बनी रहे। अगला चरण दीर्घ श्वास प्रेक्षा। श्वास को प्रयास पूर्वक लंबा करें, श्वास की गति को मंद करें। लयबद्ध श्वास, जितना समय पहले श्वास को लेने और छोड़ने में लगे उतना ही समय प्रत्येक श्वास को लेने और छोड़ने में लगाए। श्वास की गति मंद, श्वास के स्पंदन नाभि तक पहुंचे। श्वास भरते समय पेट की मांसपेशियां फूलती है और श्वास छोड़ते समय सिकुड़ती है। लंबा श्वास आ रहा है, पेट फूल रहा है। श्वास जा रहा है, पेट सिकुड़ रहा है। श्वास अंदर, पेट बाहर। श्वास बाहर, पेट अंदर। अब चित्त को नाभि पर केंद्रित कर दें। चित्त को नाभि पर केंद्रित करते हुए केवल पेट के फूलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया को अनुभव करते रहे, देखते रहे। केवल पेट को देखते रहना है। पेट फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। केवल पेट को देखते रहना है। पेट के फूलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया को अनुभव करते रहना है।
श्वास की गति जो चल रही है चलने दें। पेट के फूलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया भी निरंतर जो चल रही है चलती रहे। चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नासिकाओं के अंदर संधि स्थल पर ले आए। चित्त को नथनों के अंदर संधि स्थल पर केंद्रित करें और आते जाते श्वास को केवल दृष्टा भाव से देखते रहें। कोई भी श्वास बिना जानकारी के ना अंदर आए ना बाहर जाए। प्रत्येक श्वास को जानते हुए ले और जानते हुए छोड़े। पूरी चेतना को केवल श्वास को देखने में लगा दें। संधि स्थल पर श्वास का स्पर्श महसूस हो रहा है, उसे अनुभव करें। संधि स्थल पर श्वास का स्पर्श अनुभव करें। श्वास बढ़ते समय संधि स्थल पर हल्की सी ठंडक महसूस हो रही है और श्वास छोड़ते समय नथनों के अंदर हल्की सी उष्मा या गर्माहट महसूस हो रही है। ठंडक और उष्मा को अनुभव करते रहे, देखते रहे। अब चित्त को ललाट के बीचों बीच ज्योति के अंदर पर केंद्रित करते हुए वहां पर सफेद रंग का ध्यान। ललाट के बीचों बीच ज्योति के अंदर श्वेत रंग का ध्यान अनुभव करें। पूरे ललाट पर श्वेत परमाणु फैल रहे। पूरा ललाट श्वेत परमाणुओं से भर रहा है। सफेद रंग पूरे ललाट पर फैल रहा है। सफेद रंग शांति का प्रतीक, परम शांति, परम आनंद का अनुभव करें। रियल हैप्पीनेस। 2-3 लंबे श्वास भरें और लंबे श्वास छोड़ें। दोनों हाथ जोड़ते हुए अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली अनंतं धम्मं शरणं पवज्जामि। प्रयोग संपन्न। धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे भूमि दर्शन करते हुए आते। ओम अर्हम्। क्षमा करें, समय की मर्यादा में हमें थोड़ा कवर अप करना पड़ा, इसके लिए मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ। और समय बहुत कम है तो डायरेक्टली आप लोगों से ही बात करेंगे कि आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए। मेडिटेशन का तो इतना बड़ा है कि जितना बताए कम। बस एक रिक्वेस्ट करूंगी कि हम इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, ट्रेनर तैयार कर रहे हैं, आप हमसे जुड़िए, हम आपको भी ट्रेनर बना देंगे, हमको सिखा देंगे तो आप सीखेंगे तो पूरे यूएस में क्या सारे वर्ल्ड में फैलाने के लिए और चाइना कन्वेंशन में इसका आगे ले जाने के लिए बहुत काम की चीज है। तो मैं हाथ जोड़ के सबको नम्र निवेदन करती हूँ कि आप आज तक बहुत काम किए, समाज के लिए, सोशल के लिए, दुनिया के लिए, आत्मा के लिए कुछ करिए ओम अपने अर्हम्। लिए। ओम अर्हम्। इसी के तो साथ अभी विपिन भाई इसकी भी आपके भाई, जो भी और भाई मैं बहन फॉरवर्ड करती हूँ। जिज्ञासा हो तो हैंड राइज
हैंड राइज करेंगे या सबको अनम्यूट कर दूं? नहीं, हैंड राइट करेंगे, उनको पूछ लीजिए जिसको भी बात करनी है, एक बार हाथ ऊपर कर दीजिए, अपने हैंड राइज फीडबैक का दीजिए ऑप्शन या है आपके पास? क्वेश्चंस पूछ लीजिए। समय कम है तो टाइम ना वेस्ट करते हुए अगर क्वेश्चन हाँ, पूछेंगे 5-7 तो मिनट समय बचा हुआ है हमारे पास। फिर भी एक बार अंश जी, सेना जी, जितने भी जुड़े, रोहित जी, पन्ना जी, वीडियो ऑन करेंगे तो वी विल बी वेरी थैंकफुल टू यू, वी विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि आपके चेहरे देखेंगे, वाह, थैंक यू, थैंक यू। किसी ने अभी खोल दिया, हिना जी थैंक यू। तो आप सभी खोलेंगे आपके वीडियो, वाह होते हैं आप, आपके फीडबैक्स मोस्ट वेलकम। थैंक यू पन्ना जी, आपने भी वीडियो खोल दिया। मधु ओके, जी, मैं अभी सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, आप कोई अपने भी आप बात, को अनम्यूट करके एक एक करके बात करेंगे। अलका जी आप नाम बोलेंगे, जिनका नाम बोलेंगे वो अपने आप को अनम्यूट करेंगे, बात करेंगे। यस, पहले मिसेस बिपिन शाह, मिसेस बिपिन शाह बात करें। अपने अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अपने आप को अनम्यूट कीजिए, मिसेस बिपिन शाह। मैं सॉरी, मुझे उनका नाम नहीं पता है, खाली बिपिन भाई का नाम। मेरा नाम सोहिनी शाह है। और जब गर्दन हम लेफ्ट से राइट तक ले जाते हैं, पूरा घुमाते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज भी करना। ये गर्दन को अपने को दोनों साइड में करना जी। देखो, दोनों साइड जितनी पे। मैक्सिमम जाती है उतनी कैपेसिटी उतना करना है, अपनी मर्यादा के अनुसार करना है, क्योंकि हर एक का बॉडी का स्ट्रक्चर अलग होता है, तो अपने हिसाब से अपने कंफर्टेबल। तो इसीलिए पतंजलि ने कहा स्थिर सुखम आश्रम, जहाँ स्थिर लगे यहाँ स्थिर रह सकता, और उसमें सुख मिलना चाहिए। थोड़ा भी लगे कि मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां तक नहीं जाना है। अच्छा, थैंक यू। जय जी। और ऑलवेज आपका वेलकम। यस, I will let everybody say, but this is अलका बहन और आनंद मल जी, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी तरह से योगा भी करवाया और प्रेक्षा मेडिटेशन का भी, प्रेक्षा ध्यान का भी बहुत सिंपल ऐसे एक्सप्लेनेशन दिया, तो सब लोग कर सकते हैं अभी अपने आप, और ज्वाइन हो सकते हैं बाद में भी। Thank you on behalf of the whole Jain Society of Greater Detroit. But anybody else can join and talk also. यस, मैं थैंकफुल टू मनीष भाई को, वो बोले मुझे समय नहीं है, फिर भी बिजी शेड्यूल में वो एंड तक रुके। वही बात है, उनकी अभी दूसरी मीटिंग भी है, फिर भी वो रुके, तो वो भी अपनी, आज कैसा लगा क्लास, तो वो भी अपनी भाव रखे। सीमा है, पल्लवी जी है, कोई भी अगर बात रखना चाहता है तो बात कर सकते हैं। यस मनीष भाई। हाँ, थैंक यू वेरी मच फॉर स्टार्टिंग दिस प्रोसेस। आपने शुरुआत जो की है, that is wonderful. I hope we can continue it, because Alka Ben is literally a treasure trove of different types of both mental, mind, body, and spirit, exercises. She is always very cheerful and upbeat in her demeanor. So I would encourage कि हो सकता है तो we do something, maybe once a month or whatever so frequency our Jain organization of seniors at Jain Society of Greater Detroit would like to do. I highly recommend doing that, and we हम सब जोड़ सकते हैं. ओम आराम, ओम आराम। ओ मैडम मनीष भाई, Malji and Alka Ben, that you have done this पन्ना morning. शाह, पन्ना शाह ने अपने आप को अनम्यूट किया है। पन्ना शाह वीडियो ऑफ है और अनम्यूट किया है। सीमा शाह ने अपने आप को अनम्यूट किया। सीमा जी बोल सकते हैं। आनंदमल भाई साहब, मनीष भाई साहब, जय जिनेन्द्र, और सबको जैन संघ को जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया रहा, ये दोनों इतनी सेवा कर रहे, कोविड के पहले से इन्होंने स्टार्ट किया है। एवरी डे इनका प्रोग्राम रहता है, दोनों का, आनंदमल भाई साहब और अलका, इनकी ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, और बहुत सेवा करते हैं। इट बहुत बढ़िया होगा आप कनेक्ट हुए जैन टेम्पल के साथ, और वीकली या मंथली ऐसा कुछ करे। स्पेशली विंटर टाइम में लोग बाहर नहीं जा सकते, तो बहुत बढ़िया होगा। तो देखो विपिन भाई साहब, देखो कैसे क्या हो सकता है। एंड थैंक यू फॉर डूइंग दिस। थैंक यू सीमा, थैंक यू बहुत सो बढ़िया मच। सीमा जी। देखिए आजकल दुनिया बहुत छोटी हो गई है। आप अमेरिका में बैठे हो, मैं इंडिया में हूँ, कोई जापान में, कहीं से भी हम जुड़ सकते हैं। तो दुनिया सिमट कर बिल्कुल मुट्ठी में जैसे आ गई ऐसा लग रहा है। और अभी अभी तो हम चांद पे भी पहुंच गए। कहा चांद वहां भी पहुंच गए, वहां भी तिरंगा फहरा दिया। भारत माता की जय, सभी बोलेंगे एक बार,
भारत माता की जय। जय। भारत जय, माता जय। की हम जय। जय। चंद्रयान पर पहुंचे, इसलिए वी आर प्राउड ऑफ इंडिया। हम चंद्रयान पर पहुंचे हैं। सो इंडिया जिस तरह प्रोग्रेस कर रहा है, उसी ने दुनिया को योगा दिया है। और आचार्य महाप्रज्ञ जिन्होंने कायस्थ पर प्रेक्षा ध्यान पर 12 साल खुद पर प्रयोग किए, इतने प्रयोग किए रहे, ये प्रेक्षा मेडिटेशन हमें दिया है। तो सभी लोग, आप इंटरनेशनल प्रेक्षा की क्लास भी होती है, दूसरी भी क्लास होती है, तो कोई भी क्लास को जोड़ो और प्रेक्षा ध्यान जरूर करें। कि प्रेक्षा ध्यान इतना छोटा नहीं, जैसे सीमा ने और मनीष भाई जी ने हमें रिक्वेस्ट की कि जैसे हम कंटिन्यू कर सकते, तो इसमें बहुत सारे 8 स्टेप्स है। कायोत्सर्ग है, अंतर यात्राएं, श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लेशा ध्यान, अनुप्रेक्षा और भावना। तो जैसा समय हो, हम एक एक सेशन लेंगे। तो आई थिंक दैट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर एवरीवन। घर बैठे सबको एक अच्छा सॉल्यूशन मिल जाएगा, समस्या का समाधान। सबसे पहले टाइम का थोड़ा ओवर हो गया 2-3 मिनट, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, माफी मांगती हूँ। जिनको जाना है वो निकल के जल्दी अपने टाइम पे निकलेंगे तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। परंतु अभी इतने सारे टॉपिक्स थे और इतना था, तो हमने समय लिया, तो धन्यवाद देती हूँ। लास्ट में सब हंसते हंसते जाएंगे, एक लाफिंग हंसते कराऊंगी, सब हंसते हंसते जाएंगे। और प्रार्थना तो जरूर करनी है। हाँ, तो सभी प्रार्थना अभी पकड़नी मेरे जाएगी, प्रार्थना लेंगे हम अंत में। एक बार सब ले लीजिए। अभी देखिए, हिना जी, पल्लवी जी, सबके चेहरे पे मुस्कान आ गई, हास्य मुस्कान, हास्य योगा बोलते ही सबके चेहरे खुश हो गए। तो सभी हंसना चाहता है, खुश रहना चाहता है। अभी जहां बैठे वहीं से हंसिए और खेलिए। तो कैसे, तो हमारे को फूल बहुत अच्छे लगते, पहले ये फ्लावर हंसते, फूल बहुत अच्छे लगते सबको, खुले हुए खिले हुए फूल भगवान को चढ़ाने में बहुत मजा आता है। तो हम ये समझे कि ये हमारा हाथ है, एक हाथ है वो बंद करना है, इसको कली बोलते हैं। ये कली बन गई है, ये कली है। दोनों हाथ एक दूसरे को बंद बंद कर दीजिए, एक ये, दूसरा हाथ से उसको बंद कर दीजिए। तो ये कली हो गई। अब इस कली को क्या करना है, हमको फूल होते हुए देखना है। तो हाथ का राउंड करते करते, राउंड करते करते, वाह, राउंड करते वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और ऊपर पूरा फ्लावर बना के गर्दन ऊपर करके इसको देखना है। और उंगलियों को घुमाना है, उंगलियां, हमारा जो मणिबंध है, हाथ, कोहनी, सबका तनाव, गर्दन पे तनाव, इसलिए थायराइड, पैराथायराइड। आप बोलेंगे हास्य का क्या संबंध, तो आइए हाथ नीचे कीजिए, हाथ नीचे कीजिए, वापस शुरू करते हैं। हाँ, हाँ, शांति, हाँ, 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 सबको करना है मनीष भाई। हाँ, 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 हाँ। ऊपर देखिए। हाँ, 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 हो, हे, 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 हा, 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 हो, हंसते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। हंसेंगे तो चेहरे पे झुर्रियां नहीं आएंगी, फॉरएवर फ्रेश लगोगे। चेहरा तो आपको हमेशा पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको कुछ क्रीम व्रीम लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप बहुत और अच्छे हम हो जाएंगे, क्योंकि हमारे ब्रेन वेव्स है वो सारे मेडिटेशन से बहुत वो होते। तो एक प्रार्थना करेंगे हम लास्ट में, अगर एंड करना है विपिन भाई ओमर आपको तो बोलिए, वरना मैं एक प्रार्थना लेती हूँ और एंड आनंद भाई। तैयार हो प्रार्थना के लिए, दोनों हाथ जोड़े। विपिन भाई आपको कुछ कहना है? ठीक है। ये प्रार्थना बहुत अच्छा है, हमें भगवान की शरण में जाना है, सारे विघ्न मिटाने हैं, और हमें खुद का दर्शन करना है, और अरहम बनना है, मतलब अरहत भगवान बनना है। ओम ये बहुत अच्छा किया। वी विल डू प्रार्थना और मेक श्योर में you can unmute mute everybody so nobody disturb in the प्रार्थना। आनंद भाई जी, और सबको म्यूट। यस, और बोलिए लास्ट भी। में और लास्ट में जो भी वीडियो अपना जो रिकॉर्डिंग किया है वो जब भी भेजेंगे तो मैं अपने जैन सेंटर में रख दूंगा अपने ये सेशन की वीडियो। ओमर अभी ओम और हम सबको म्यूट कर रहा हूं मैं। अलका जी, यस, प्रार्थना के लिए तैयार। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अलका जी, आप म्यूट हो गई है।
मंद चेहरा शांत, केवल अपने आप को देखे और भगवान से प्रार्थना करे, ओम अरहम सुगुरु शरणम हरणम मिटे मरणम सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम, सभी अरहम बने। इस भाव के साथ अंतर शक्ति जगाने की प्रार्थना आनंद भाई जी। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, बहुत सुंदर तरीके से आज बहुत थोड़े समय में बहुत कुछ हमने जानने का प्रयास किया। अलका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे भी इस अवसर पर आपके साथ शामिल करने के लिए। और आपको बताते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मैं और अलका जी दोनों मिलकर हमारी सुबह की डेली क्लास जो चलती है IST सुबह 6:30 से 7:30 प्रतिदिन जुड़ती होती है। तो आप भी अगर जुड़ना चाहे तो आप अलका जी से संपर्क करें, आपको हम ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और प्रतिदिन आप एक दिन योगा, एक दिन मेडिटेशन, एक दिन योगा, एक दिन मेडिटेशन, इस तरह से हमारी क्लास चलती है, 365 दिन चलती है। तो अभी समापन की ओर चलेंगे, दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ एक बार की मैं भी गर्दन सीधी रखते हुए। बिपिन भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जैसे मनीष भाई ने जैसे ही सजेस्ट किया और बिपिन भाई ने तुरंत एक्शन लिया और कार्यक्रम के लिए साथ दिया और सबको तैयार किया। कितने लोग जुड़ते वो इम्पोर्टेंट नहीं, हमें पुरुषार्थ करना है, कर्म का फल नहीं चाहिए। जो जुड़े वो अपना योग है। हमें बड़ी खुशी है कि एक छोटा सा रास्ता बन सकता है। तो आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। बहुत धन्यवाद सबको, जुड़े हैं उनको और जिन्होंने अरेंज किया उनको, जिन्होंने सजेशन किया उनको। धन्यवाद बिपिन भाई। तो धन्यवाद आप दोनों को भी धन्यवाद कि आपने अपना इतना कीमती समय, हम तो घर पे है, लेकिन आप दोनों ने, आनंद जी ने भी इंडिया से ज्वाइन हुआ तो अच्छा है, और बहुत अच्छी तरह से आप दोनों सिखवाया। ओम और हम, ओम और हम। तो अभी समापन की ओर चलेंगे, दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ आप मानसिक मन ही मन उच्चारण करें, मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। बहुत बहुत सभी अपने गुरु को वंदना करें। इतना बड़ा प्रेक्षा ध्यान दिया। महाप्रज्ञ जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। भगवान महावीर से लेके आज तक जिसके भी जो भी गुरु है, सभी गुरु को प्रणाम कीजिए और नॉलेज लेते रहिए। इसी भाव के साथ बिपिन भाई। तो आज का वीडियो, अभी का वीडियो हमारे पास आ जाएगा। हमारा MPK फिटनेस क्लासेस के नाम से यूट्यूब पे चैनल बना हुआ है। उस चैनल पे इसकी एडिटिंग होने के बाद चैनल पे अपलोड हो जाएगा। और आज हमारे चैनल पे करीब 1200 वीडियो, 1200 वीडियो, आज तक की जितनी क्लासेस हमने ऑनलाइन ली है, सारे वीडियो अवेलेबल है। आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने पसंद का जो भी टॉपिक है उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज का वीडियो हमने केवल लोगस्त पे ही 29 सेशन लिए। अष्टमंगलक लोग जानते नहीं, उस पर अभी 19 सेशन हुए। और न जाने आउटसाइड ऑफ इंडिया भी बहुत सारे फॉरेनर, मतलब अमेरिका से, जापान से कई लोग हमारे प्रशिक्षक करके जुड़े और हमें नॉलेज दिया। आप सब उसका लाभ ले। ज्ञान दान सबसे बड़ा दान, आप लीजिए, सबको बेचते रहिए इसी भाव के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।
यस सेंड कर दीजिए। जय ओके जय विपिन भाई, ओके Okay, धन्यवाद। thank you. Thank you, Thank Alka you, bhai. Jai Jinendra, and thank everybody from यस Detroit who थैंक यू, joined सभी today. हाथ ऊपर करे, बाबा थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओम Thank you. अरहम, अरहम ओम अरहम, ओम ओम अरहम।